Illustration 24. Journalize the following transactions. Sold goods costing rupees 60,000 to Dinesh against check at a profit of 40% on cost less 20% trade discount and paid carriage rupees 500 not to be charged from the customer. It means carriage is paid by the seller and sold goods means sales. 60,000 at a profit of 50% on 40% on cost, and cost of goods is 60,000. For this, first of all, we will calculate the profit, that is 40% on cost. 60,000 into 40%, it comes 24,000. Okay, this 24,000. It means goods costing 60,000 sold at 84,000. But here, after this 20% trade discount, 4,000 into 20%. That is 16,800 is the trade discount, but trade discount will not be recorded. It is not a cash discount, it is a trade discount, and a trade discount, we will not record the trade discount. It is deducted from the invoice, means it is deducted from the, it will be deducted from the total sales. Total sales is 84,000 minus 16,800. Then total sales will be considered is 67,200. Sales 67,200 and goods are sold through against a check, means बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बिकॉज देखो इस क्वेश्चन में जो है ट्रांजेक्शन में बैंक से रिलेटेड जो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट other information is not given when this check is deposited into bank, so then it is assumed that check is deposited into the bank on the same day. Therefore the journal entry will be bank account debit to sales account 67,200. And other point is paid carriage rupees 500 not to be charged from the customer. Carriage paid, it is a nominal account. According to the rule, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Carriage will be debited when the carriage is जो है goods sold करते हैं तब हम carriage पे करते हैं, तो that means carriage outward account. If goods जब हम परचेज करते हैं उसके साथ जो कैरेज पे करते हैं दैट इज द कैरेज इनवर्ड. तो देन कैरेज आउटवर्ड, और यू नो दैट जितने भी नॉमिनल हमारे अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कैश में पे करते हैं, लाइक रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश. दैट्स व्हाई कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश. कैरेज अकाउंट डेबिट 500 to cash account 500. Next transaction, sold goods costing rupees 45,000 to Manoj at a profit of 33 1/3% on cost less 20%
trade discount and paid carriage rupees 400 to be charged from the customer. It means carriage has already been paid by the seller. कैश में उसने पे कर चुका है, बट उसे वो कस्टमर से चार्ज करना है. इट मीन्स मनोज से चार्ज करना है 45,000 at a profit of 33 1/3% means 100 by 300. 45,000 into 100/300 is 15,000. It is a profit. It means total sales 45,000 plus 15,000, 60,000. Okay, 60,000 less 20% trade discount. 60,000 into 20%, 12,000. Then sales will be 60,000 minus 12,000, 48,000. It is a trade discount. We will not record it in the books. Okay. Sales is 48,000 and 400 cartage जो carriage है is to be charged from the customer. It means अभी हमें चार्ज करना है. The customer becomes our debtor by 400 rupees and it is not mentioned ना कि goods जो है name is given to sold to Manoj at rupees 45,000. It is not mentioned in the question that the goods sold to Manoj against a check or on cash basis. So it means these goods are sold to Manoj on credit. So then Manoj will be debited to sales account. These goods sold on credit, Manoj will be debited. Manoj debit to sales. Sales 48,000 and 400 carriage. Carriage जो है it's come under the nominal account और जो भी nominal account में जो भी expenses हैं वो हम cash में ही pay करते हैं. That means carriage account debit to cash, but carriage जो है वो हमें किससे charge करना है? Customer से charge करना है. Therefore उसको हम क्या करेंगे? मनोज जो है customer है उसको हम उसमें ऐड कर लेंगे. मीन्स 48,000 तो हमने उससे गुड्स जो सोल्ड किए थे वो लेना है और 400 हमने उससे क्या लेना है? कैरेज लेना है. और ये कैश इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि कैरेज हैज बीन पेड बाय द कंपनी. जो सेलर है उसने ऑलरेडी कैरेज पे कर चुका है कैश में. तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश विल बी क्रेडिटेड हियर and sales credited and total Manoj will be debited by 48,400. Next, paid by check rupees 6,000 as fire insurance premium for a period of 12 months. Starting 1st July 2017, financial year closes on 31st March every year. जो भी हम एक्सपेंसेस शो करते हैं वो पूरा 1 ईयर तक होते हैं. बट यहाँ पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है वो भी 12 मंथ्स का है, अप टू 1 ईयर है. बट वो जुलाई से स्टार्ट हुआ था तो जून में एंड होगा. जुलाई टू नेक्स्ट ईयर जून, पूरा 1 ईयर. बट हम अकाउंट क्लोज करते हैं 31st मार्च. तो 31st मार्च तक के जो एक्सपेंसेस हैं उनको हमें यहाँ पर शो करना है. बट यहाँ पर तो अप्रैल मई एंड जून जो प्रीमियम हमने पे किया है वो कब तक किया है? अप टू जून. देन 6,000 जो प्रीमियम है ये 12 मंथ्स का है. इट इज गिवन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. बट ये अप टू जून है. जुलाई से लेकर जून तक 1 ईयर होगा. बट हमने जो अकाउंट्स में एक्सपेंसेस शो करने हैं वो 31st मार्च तक के करने हैं. इट मीन्स अप्रैल मई एंड जून 3 मंथ्स का हमारा क्या है?
प्रीपेड है, एडवांस। $1,500 is prepaid insurance. And what will be the journal entry? Prepaid insurance account debit to, ठीक है, जब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो इंश्योरेंस, ये तो जुलाई 1 की एंट्री हो जाएगी, टोटल 1 ईयर का पे कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ऑन 31st ऑफ मार्च 2018 जर्नल एंट्री विल बी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। I'm going to repeat this transaction again. Paid by check ₹6,000 as a fire insurance premium for a period of 12 months starting 1st July 2017. Financial year closes on 31st March every year. अब यहाँ पर 1 जुलाई 2017 को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 12 मंथ्स का, तो उसका जो 12 मंथ्स हैं वो जून 2018, जून 2018। बट हम जो अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं वो 31 मार्च 2018, क्योंकि हम अकाउंट्स की बिगनिंग कर रहे हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 एंड क्लोजिंग ऑन 31 मार्च 2018। तो हम सिर्फ जो है 31 मार्च 2018 तक के जो एक्सपेंसेस हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। बट यहाँ पर जो प्रीमियम है वो अप टू जून है, इट मीन्स अप्रैल, मई एंड जून 3 मंथ्स का प्रीमियम क्या है, इट इज एडवांस। तो 6,000 12 मंथ्स का, तो हम 1 मंथ का कितना होगा, अकॉर्डिंगली उसको हमने कैलकुलेट कर लिया इनटू 3 से आप मल्टीप्लाई करें तो हमारा देखो 6,000 अपॉन 12 से हमारा 1 मंथ का आ जाएगा। देन उसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा 3 मंथ्स का आ जाएगा। तो 3 मंथ्स का हमारा एडवांस कितना आया, 1,500। 3 मंथ्स का एडवांस 1,500 है। नाउ अब हम जो है इसकी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर देंगे। जब हमने पे किया है ऑन 1 जुलाई 2017, देन ऑन 1 जुलाई 2017 थ्रू बैंक पे किया है इंश्योरेंस प्रीमियम, it comes under the nominal account, then debit all expenses. We will debit the insurance premium account debit to bank, debit the receiver and credit the giver. Bank account is a personal account, bank account is, our bank account is giving the money. So then on March 2018, 31st March, prepaid insurance to insurance premium 1,500. And the last transaction is spent ₹300 for refreshment of a customer. So then it is a miscellaneous expenditure or a sundry expenses. So then sundry expenses account debit to cash account. Sundry expenses, it comes under nominal account. According to rule, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Sundry expenses or miscellaneous, you can write miscellaneous expenses or sundry expenses to cash. जो भी नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो उनको हम जो है हमेशा क्या करते हैं, कैश क्रेडिट करते हैं एंड एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, लाइक रेंट टू कैश, कमीशन टू कैश, कैश इंटरेस्ट टू कैश। Sundry expenses account debit to cash account. Okay, next illustration. Which part, Prerna? Second part. That part, insurance account debit to prepaid insurance. Okay, in third part. Yes, you can do. You can record according to.
Okay, the first transaction is purchased an iron safe for business for rupees 1 lakh and payment made by check. Iron safe, it is a furniture. Okay, yeah, office equipment, account debit to बैंक. आयरन सेफ अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं करना, ऑफिस के लिए यूज किया जा रहा है तो ऑफिस इक्विपमेंट लिख सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू बैंक. ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इट इज अ फर्नीचर, ऑफिस के लिए यूज होगा तो देन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. परचेज ए कंप्यूटर, purchased a filing cabinet for office use for rupees 40,000 and paid 200 as a cartage on it. Filing cabinet, it is a furniture, ऑफिस के लिए यूज किया जा रहा है तो देन इफ कोई भी अगर हम एसेट परचेज करते हैं देन उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो उसी में ऐड हो जाते हैं. ठीक है, तो देन ये 200 जो है वो हम ऑफिस इक्विपमेंट में ही ऐड कर लेंगे, ऑफिस में यूज किया जा रहा है तो देन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 40,200 टू कैश. 40,200 टू कैश, इट इज अ फर्नीचर और जो भी एसेट है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए जाएंगे वो हम उसको डेबिट कर देंगे, इन एसेट अकाउंट में ही उसको डेबिट हो जाएंगे. Next, I purchased a computer from Radha Krishnan and Company on credit. Computer means again office equipment. Office equipment account will be debited to Radha Krishnan because it is purchased on credit. Office equipment account debit to Radha Krishnan and Company 80,000. Purchased an electric fan rupees 20,000. अब इलेक्ट्रिक फैन है तो इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करना. इलेक्ट्रिक फैन जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फैन है लाइक एसी फैंस एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं इनको ये बिल्डिंग में फिक्स हो जाते हैं बिल्डिंग में तो इनको हम जो है फिक्सचर्स बोलते हैं. तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक इंस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फैन यू विल डेबिट द फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट. परचेजेस नहीं करोगे, परचेजेस तो हम तब करते हैं जब अगर हमारा उसका अगर बिजनेस होता कि वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करता तो देन फैन अगर उसने परचेज किया तो देन परचेजेस अकाउंट डेबिट होता. बट यहाँ पर इस तरह से मेंशन नहीं है, ओनली जर्नल एंट्रीज गिवन है. परचेज्ड एन इलेक्ट्रिक फैन तो फिक्सचर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश. Fixtures account debit to cash account. Purchased a horse for business for rupees 1,50,000 and payment made by check. Horse जो है it comes under live stock. Horse account will not be debited. आप बैलेंस शीट में ये थोड़ा लिखेंगे हॉर्स फैन. ठीक है, तो हॉर्स इंस्टेड ऑफ हॉर्स लाइव स्टॉक, जब भी कोई इस तरह से कोई भी एनिमल जो है बिजनेस के लिए परचेज किया जाता है बिजनेस यूज के लिए तो देन हम उसको क्या यूज करते हैं, लाइव स्टॉक वर्ड यूज करते हैं. एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक देन लाइव स्टॉक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. द जर्नल एंट्री विल बी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000. Purchased postcards, envelopes and stamps. पोस्टेज है, सारे रिलेटेड है, पोस्टेज से रिलेटेड है. पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 प्लस 500 एंड प्लस 250 1750. तो जर्नल एंट्री विल बी postage account debit to cash account. Postage account debit to cash account 1750. इसको आपने
डिफरेंट नहीं करना, अलग अलग से नहीं करना। पोस्ट कार्ड, डेबिट टू कैश, एनवेलप टू कैश, स्टैम्प्स अकाउंट, ये सारे पोस्टेज से रिलेटेड हैं, तो हम एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल देंगे इसको, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज ऑफिस स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। gave as a charity cash rupees 2000 and goods rupees 4000. Charity is a nominal account. Charity account will be debited to cash account, debit what comes in and credit what goes out, and to purchases account, कि जो purchases जो है, हम sales has not taken place, sale नहीं किए हैं, चैरिटी में दिए हैं, तो देन इंस्टेड ऑफ सेल्स अकाउंट हम क्या क्रेडिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। देन जर्नल एंट्री विल बी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट, द हॉर्स बॉट ऑन मार्च 6 डाइड, इट्स कैरकेस मीन्स उसके जो रिमेन्स हैं वाज सोल्ड फॉर रुपीज 10,000। हॉर्स परचेज किया था हमने 1,50,000 का, और उसको अब हमने जो सेल किया है वो 10,000 का सेल किया है। तो ये जो 1,40,000 है, इट इज अ लॉस। तो देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास कितना कैश आया, थोड़ी कैश कितना आया है 10,000, एंड प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस कितना हुआ है 1,40,000 टू लाइव स्टॉक। कैश अकाउंट डेबिटेड बाय रुपीज 10,000, हमारे पास कैश आ गया है, एंड लाइव स्टॉक हॉर्स, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। अब हम उसको शो ही नहीं करेंगे अपनी बैलेंस शीट में। एंड प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस कितना हुआ है जो हमने एसेट सेल की है उस पर लॉस टोटल हमारा कितना हो गया है 1,40,000। लॉस है तो लॉस को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 1,40,000। एंड sold household furniture rupees 1 lakh and paid the money into the business। हाउसहोल्ड फर्नीचर सेल किया है और जो उससे मनी रिसीव हुई है उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया है। जब भी बिजनेस में मनी इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोप्राइटर, दैट मीन्स कैपिटल। तो देन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स नहीं होगा, ड्राइंग्स तो तब होता है कि जब एक प्रोप्राइटर जो है वो बिजनेस में से विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज गुड्स, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो उसकी अपनी पर्सनल कुछ प्रॉपर्टी थी, उसका हाउस होल्ड फर्नीचर था, उसने उसको सेल कर दिया और जो अमाउंट रिसीव हुई है उससे उसको उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। और वेन एवर द कैश इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, इट मींस कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में क्या आया है कैश आया है, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन इज पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक रुपीज 1,20,000 फॉर रेंट। 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। टोटल बिल्डिंग जो है वो रेंट पर थी, जिसमें से वो 1/3 जो है वो पर्सनल यूज के लिए था एंड बाकी जो है वो अपना बिजनेस पर्पस के लिए था। तो देन 1,20,000 इंटू 1/3 मीन्स 40,000 जो है वो पर्सनल यूज के लिए किया था। तो जो पर्सनल यूज है इट मीन्स ड्राइंग्स, एंड रिमेनिंग 80,000 ऑफिस यूज के लिए था। तो देन रेंट अकाउंट डेबिट 80,000 rent account debit, 40,000 drawings account debit to cash. Payment is made through the bank, paid to landlord by check. Then rent account debit 80,000, drawings account debit 40,000
टू बैंक अकाउंट। टोटल जो रेंट पे किया था दैट इज 1,20,000। आउट ऑफ दिस 1/3 जो है वो पर्सनल यूज के लिए था, तो देन ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 40,000 एंड रिमेनिंग 2/3 मींस 80,000 जो था वो किसके लिए था, ऑफिस यूज के लिए था। तो देन रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।